Chalo. So what we were doing, microscopic view to Ohm's law. There we have discussed कि we tried to justify Ohm's law. क्या देखा था हमने? इलेक्ट्रॉन होता है तो due to its thermal energy moves in a random directions in a zigzag path with a very high speeds nearly of the order 10 raised to 6 meter per second, 5 meter per second, right? Then if a field is applied, connected, then it drifts slowly in the direction of field. वैसे ही पैटर्न में धीरे धीरे आगे ड्रिफ्ट की वजह से जो स्पीड आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड इज नियरली ऑफ द ऑर्डर 10 raised to -5 meter per second. So this is very large as compared to this one, right? Then we have seen a small derivation जहाँ पे हमने क्या देखा था? Force acting on electron is what? EE. Acceleration of electron is EE by m, mass of electron. So drift velocity is EE tau by m. So drift velocity is EE tau by m. ये था drift speed, right? Then उसके बाद हमने देखा था कि current is NAEVD, I by I, that is J is NE, and drift velocity is EE tau by m. So E is m upon n E square tau and current density J. So E is m upon n E square tau by J. This is an expression which will give you relation between electric field and current density, right? Now, if you focus on this expression, with change in electric field, m remains constant. With change in electric field, m remains same, n remains same, E remains same, right? Remains same. Now, question is what about tau? तो tau आपने बोला, सॉरी, इत्तेफाक से सेम रहता है. इत्तेफाक से सेम है. क्यों? बिकॉज बढ़ना तो चाहिए था, राइट? सॉरी, कम तो होना चाहिए था, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो ज्यादा ड्रैग आएगा, ज्यादा ड्रैग आएगा तो जल्दी जल्दी टकराएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम शुड डिक्रीज. बट जो ड्रिफ्ट का वेलोसिटी है vd is much lesser than actual velocity, right? Because जो ये मोशन है थर्मल एनर्जी की वजह से है, that is very large as compared to velocity due to thermal energy is very large as compared to velocity due to drift. तो ये तो negligible ही है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. Therefore tau remains same. Relaxation time में कोई फर्क नहीं पड़ता. Altogether, this entire value is constant. E is directly proportional to J. This is what we say is Ohm's law, right? E था Ohm's law का दो statement हमने लिखा था ना, V is directly proportional to I and E is directly proportional to J. Both are one same statement. So E is directly proportional to J. ये मिल गया, right? Now, in addition to this, if you recall, by definition of resistivity, definition of resistivity क्या था? E by J, rho is E by J. तो ये जो चीज दिख रही है ना, this itself is resistivity, m upon n E square tau. Rho is m upon n E square tau. यही आपका resistivity है. आ रहा है समझ में? So what is resistivity? Resistivity is m upon n E square tau. Hello, तो respond भी करो. हाँ सर, समझ गए.
E is equal to rho J by definition of resistivity, and यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया, E is equal to m upon n e square tau into J. So यही आपका एक्चुअली rho है. So rho is m upon n e square tau. Now let's try to convince ourselves कि resistivity, which we believe is contribution of material on resistance of a conductor, is equal to m upon n e square tau. ये करके देखते हैं. थोड़ा लॉजिकल नहीं लगेगा आपको कि मास चेंज करना है. अब इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ी ना चेंज होगा. इस बुढ़ापे में इलेक्ट्रॉन अभी क्या खा पी के हैवी तो होगा नहीं. फिर भी लेट अस से अगर चेंज हो सकता तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से रेजिस्टिविटी ज्यादा होती. क्या ये ठीक लग रहा है आपको सुन के? नहीं. ठीक लग रहा है. क्यों लग रहा है भाई? अगर तो हैवी चार्ज, मुझे लग रहा है ना बेटा. अच्छा. तो मुझे लग रहा है, क्यों लग रहा है? इफ मास ऑफ चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर का जो मास है वो अगर ज्यादा होता, इफ इट वाज मोर, देन इट विल एक्सेलरेट लेस. हैवी होगा तो उसको मूव कराना मुश्किल होगा. नहीं लगता आपको? हाँ. तो मास ज्यादा होता तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है. क्यों? मास ज्यादा तो उसको मूव कराना मुश्किल, चार्ज कैरियर को मूव कराना मुश्किल है, तो उतना अच्छे से चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, उतना स्मूथ चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा. दो इट इज इलॉजिकल टू से कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता, इलेक्ट्रॉन अब का मास थोड़ी ज्यादा होगा. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ. उत्कर्ष, उत्कर्ष है कि चले गए? उत्कर्ष सर. तो ये सब चीजों में तो रिस्पॉन्ड किया करो यार. अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. क्या आपको ऐसा लगता है इनका वैल्यू कम करने से रो ज्यादा होना चाहिए? सर क्या? एन का वैल्यू कम करने से रो ज्यादा होना चाहिए. आपको ऐसा लगता है? हाँ सर. बिल्कुल लगता है भाई. रेजिस्ट, अगर चार्ज कैरियर डेंसिटी कम हो जाएगी, चार्ज कैरियर डेंसिटी कम हो जाएगी, तो नेचुरली रेजिस्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी. हेलो. हाँ सर, समझा. तो ये एन वाला काम भी जस्टिफाइड है. अब देखो आ जाते हैं ई पे. चार्ज ऑन चार्ज कैरियर अगर बढ़ जाता, इफ इंक्रीजेस, देन रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस. लुक्स लॉजिकल और नॉट? लॉजिकल लग रहा है या नहीं लग रहा है? हाँ सर. लग रहा है लॉजिकल. क्यों भाई? हेलो. जस्टिफाई तो करो ना यार. क्यों? ई ज्यादा होता अगर चार्ज ऑन चार्ज कैरियर इज मोर, देन रेजिस्टिविटी वुड बी लेस. व्हाई? और वो भी एक बार नहीं, स्क्वायर फैक्टर है. मतलब दो दो चीजें हैं. वो इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन या जो भी आपका चार्ज कैरियर था, अगर शिफ्ट हो जाता, मूव हो जाता, तो ज्यादा चार्ज ट्रांसफर हो जाता. हाँ सर. नहीं हो जाता. पहले 10 इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज उन पे कम होता तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से कम चार्ज ट्रांसफर हो. नहीं, अगर आपको इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ज्यादा होता इन केस, तो वही 10 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से बहुत सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाता. मतलब मोर करंट, मतलब लेस रेजिस्टिविटी. राइट? वाई कंट्रीब्यूशन इज डबल, मतलब स्क्वायर्ड. दो बार कंट्रीब्यूशन, क्योंकि मोर इज द चार्ज इन चार्ज कैरियर, मोर विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन इट. तो उससे स्पीड ज्यादा आएगी, एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा. और इधर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से, एक चार्ज कैरियर ट्रांसफर होने से चार्ज भी ज्यादा आ जाएगा. तो दो दो बार वो फैक्टर आ रहा है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर.
आई डोंट नो वेदर यू पीपल आर फीलिंग इट और नॉट, बट अगर फील कर लो तो बहुत मजा आता है कि हाँ यार ये बताओ, रेजिस्टिविटी कभी सोचा नहीं था ऐसा होता है। नहीं हो रहा सर फिर। तो कौन सा मास ही नहीं समझ में आया तुझे? वही नहीं समझा, वो दो बार जो आपने बोला, दो फैक्टर। अच्छा बाकी समझ में आया, एम और एन का रोल। नहीं, एक और बार समझा दो सर। See, resistivity, my claim is given by formula Ne square tau, right? We claim that resistivity is M upon Ne square tau. If M increases, मान लो M की वैल्यू बढ़ती है तो रो इंक्रीजेस, ये हमने फील करना है। क्यों? बाकी इलॉजिकल है, किसी भी बुक में ऐसा सब लिखा नहीं हुआ है। कोई भी बोलेगा ये क्या है, आदमी है अब इस बुढ़ापे में इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ा रहा है, तो मास नहीं बढ़ना, लेकिन भाई चार्ज कैरियर और भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं ना। तो हैवी अगर चार्ज कैरियर होता तो क्या होता, तो उसको मूव करना मुश्किल होता है, राइट? इफ m increases, rho increases. Why? Let us try to convince ourselves. More is mass, more डायरेक्टली is बदल। more is mass of charge carrier, difficult will be to move it. मैं हमने इनर्शिया में पढ़ा हुआ है, जिसका मास ज्यादा उसको चलाना मुश्किल, तो डिफिकल्ट विल बी टू मूव इट, राइट? उसको चलाना मुश्किल होगा, राइट? हेंस मास और दे आर प्रोपोर्शनल, मास ज्यादा तो रो ज्यादा, मास कम होगा हल्का होगा तो इजीली चलने लगेगा, इजीली चलने लगेगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, इजी टू ट्रांसफर द चार्ज, राइट? समझा? हाँ सर। एन पे आ जाओ, एन का क्या लेन देना भाई? ns charge carrier density, ns charge carrier density. More is n, lesser is resistivity. तो जितने ज्यादा चार्ज कैरियर हो पर यूनिट वॉल्यूम उतना अच्छा होगा ना, जितने कम चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम उतना ज्यादा रेजिस्टिविटी होगा। अब वो बैड कंडक्टर होता क्यों बैड कंडक्टर? बिकॉज उसके पास कैसे सर? बोल यार, अब चार्ज कैरियर इसके पास ये बैड कंडक्टर है, ठीक? इसके पास चार्ज कैरियर है ही नहीं, नियरली एन का वैल्यू 0 है, बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, 0 नहीं होता पहले बता दो, बट ठीक है प्रैक्टिकली तो आप समझ लो कि है ही नहीं चार्ज कैरियर, तो एन का वैल्यू नियरली 0 है तो रेजिस्टिविटी बहुत लार्ज होगी। इफ इट वाज अ गुड कंडक्टर, जैसे कॉपर है, तो कॉपर में चार्ज कैरियर डेंसिटी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, 10⁻29 पर मीटर क्यूब होता है, राइट? सर जितने ज्यादा चार्ज कैरियर रहेंगे उतना ज्यादा कोलिजन भी होगा ना सर? बेटा पहले ये बता, तेरे पास काम करने वाले आदमी नहीं होंगे, ठीक है? फैक्ट्री में बहुत सारे आदमी, झगड़ा होएगा, काम करेंगे, झगड़ा करेंगे, ठीक है, लेकिन आदमी नहीं होंगे तो चलाएगा कौन, ट्रांसफर कौन करेगा? ठीक है मानता हूँ कोलिजन होंगे, तो कोलिजन तो तब होंगे जब चलेंगे, जब चलने वाली चीज नहीं है तो फिर कोलिजन का आएगा? नहीं मजा है। समझा समझा सर। ये जेन्युइन डाउट है, ये एक चैप्टर में सेमीकंडक्टर्स में ऐसा एक क्वेश्चन ही आता है कि बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, तो दोनों फैक्टर एक्सप्लेन किया हुआ कि भाई बढ़ जाएगा तो चार्ज कैरियर फ्री चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, बट एक बढ़ भी चांस है किसका, कोलिजन की वजह से। बट अगर मैं देखूं, अगर चार्ज कैरियर है ही नहीं आपके पास फ्री, तो चार्ज ट्रांसफर कराएगा कौन? तो नियरली तो आपका इनफाइनाइट हो गया, नियरली आपका इनफाइनाइट इज क्या, जो भी है नियरली आपका, समझ गए ना, रेजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो गया। अब देखो ई का रोल क्या है, अभी समझो एक इलेक्ट्रॉन में मर मर के यहां से यहां लेके गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ऐसे टकरा टकरा के जैसे जैसे, एक इलेक्ट्रॉन जाने से कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ई। अगर ई का वैल्यू बढ़ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन आने से चार्ज क्या हो जाएगा,
ज्यादा चार्ज ट्रांसफर हो गया कि कम ट्रांसफर होगा? कुछ नहीं समझा। इफ E का वैल्यू, E इज व्हाट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। फ्री चार्ज कैरियर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इसका इस बार, और इन जनरल फ्री चार्ज कैरियर होता है, फ्री चार्ज कैरियर, तो चार्ज ऑन फ्री चार्ज कैरियर। इफ इट वाज मोर, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से आपको ज्यादा चार्ज फ्लो हो गया या कम फ्लो हुआ? बाबा कैसा सोचते हैं, तो कोई अच्छा भी बोलेगा यार। 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कितना चार्ज ट्रांसफर? 1.6 इंटू 10⁻⁻18। इन केस दिस 1.6 इंटू 10⁻⁻18 लार्ज, शायद से 4.8 इंटू 10⁻⁻19 होता। अगर होता, ट्रिपल होता, तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से 4.8 इंटू 10⁻⁻18 चार्ज ट्रांसफर, तो ज्यादा चार्ज ट्रांसफर हो गया। हाँ वही तो समझा रहा हूँ, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। ई का वैल्यू बढ़ जाता अगर, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से ज्यादा चार्ज उस पार चला जाता, तो मैं बोलता ना यार अच्छा हुआ ना, इसके भरोसे इसी चक्कर में मेरी रेजिस्टिविटी कम हो गई, अब आसानी से चार्ज ट्रांसफर हो रहा हूँ या सही में समझा? समझा सर। अब दो दो फैक्टर क्यों आ रहा है, दो दो बार ई आ रहा है, और एक्चुअली क्यों आ रहा है मालूम है? दो दो बार ई, एक बार इसलिए आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन उधर पार पहुंचने से तो तब का चार्ज भी ज्यादा ट्रांसफर हो गया। दूसरा, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ज्यादा होता तो जो फोर्स लगने वाला था इलेक्ट्रॉन पे, ई, वो भी बढ़ जाता। तो एक तो फोर्स ज्यादा, तो उस पार जल्दी जाएगा, एंड द सेकेंड थिंग इज उसके जाने से ज्यादा चार्ज उधर ट्रांसफर हो गया, तो दो दो बार कंट्रीब्यूशन आया उसका। ई का कंट्रीब्यूशन दो बार आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर। तो इफ ई इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। वो बात इत्तेफाक है कि अब ई तो ना डिक्रीज होगा, ठीक है। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होने वाला। ओके, फाइनली कम्स टाउ। रिलैक्सेशन टाइम कम होने से रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होने से। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा। ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? अब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी टकरा रहा है। रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलते हैं? जितने टाइम तक इलेक्ट्रॉन दो कोलिशन के बीच में स्ट्रेट चलता रहता है। तो इफ रिलैक्सेशन टाइम इज लेस, नाउ इट विल कोलाइड फ्रीक्वेंटली। कोलाइड फ्रीक्वेंटली मतलब ज्यादा टकराएगा। ज्यादा टकराएगा, रेजिस्टेंस more, ज्यादा तेज होगा। रेजिस्टिविटी ज्यादा है, राइट? This is justification for the expression. Rho is m upon n e square tau. Okay? हाँ सर। Okay. Now, my question is, can you imagine a case, reason why tau will change? Yeah, how we can change tau? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके स्ट्रॉन्ग ये तो सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ ना होने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से टाउ पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, यही तो हमने सीखा था। This is what we have discussed in previous class. या अभी भी तो बताया मैंने। हाँ सर याद आ गया। हाँ, so any other reason do you think will change tau? सर टेम्परेचर। टेम्परेचर, यही तो आपको बोलना है कैसे कि ये वाला जो थर्मल मोशन एनर्जी था, बढ़ेगा ना सर। हाँ, थर्मल एनर्जी बढ़ने से ये वाली स्पीड जो है बढ़ जाएगी। एंड हमने देखा था टाउ इस स्पीड पे ज्यादा डिपेंड करता है, ना कि इस स्पीड पे। हमने फील किया था जो टाउ है, टाउ वो जो थर्मल एनर्जी वाली जो स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी जो है उसके अंदर, उस पे ज्यादा डिपेंडेंट करता है, ना कि इस पे जो आपके ड्रिफ्ट वाली फील्ड वाली स्पीड है। तो टाउ, तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन
टेम्परेचर, मास बदलेगा नहीं, ई बदलेगा नहीं, एन चेंज होगा क्या? एन नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये चेंज होगा? नहीं नहीं। लॉजिक बोलता है कि होगा। कैसे भाई? अभी कुछ इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड तोड़ के बाहर आ जाएंगे, जो एनर्जी है उनको अपने बॉन्ड्स, जो मेटेलिक बॉन्ड्स हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड है कोवेलेंट बॉन्ड में होंगे एक दूसरे इससे, सॉरी इंक्रीज होगा फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो एन का वैल्यू बढ़ जाना चाहिए, बट देयर इज इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज, होता है क्यों? मैं थोड़े से तो और इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहर, लेकिन पहले से ये 10⁻29 है, ठीक है, पर मीटर क्यूब। मैं कहता हूँ चलो 10 टाइम्स हो गए, तो 10⁻30 पर मीटर क्यूब हो गया। हाँ? तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा हीट करने से, जितना रिलैक्सेशन टाइम में फर्क पड़ जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा ज्यादा मैंने दिखा दिया, 10 टाइम्स नहीं होता, बहुत ही कम इंक्रीज होता है, बिकॉज पहले से ही तो इतने सारे हैं, क्या ही इंक्रीज होंगे। नहीं समझा? तो वो केमिस्ट्री में घुसना पड़ेगा अपने को। क्या है, एक एटम है, उससे आपने एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाल लिया है, अब उससे बोलने जाओगे यार चलिए एक इलेक्ट्रॉन और दे दे, अपना फ्री कर दे, तो तकलीफ तो होगी ना उसको। फिर नहीं समझा? समझा। ऑलरेडी कॉपर के एक एटम के पीछे एक फ्री इलेक्ट्रॉन पहले ही देके रखा, उसने लेके जाओ, नहीं? अब आप बोलोगे एक और दे दे, तो एक इलेक्ट्रॉन जब उससे दूर भागा तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव हो गया, राइट? अभी आप बोलोगे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी फ्री कर दे, तो ना हो पाएगा, तो मुश्किल होता है। तो एन की वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होती है। एन, हाँ, इफ इट वाज अ इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तब बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। इफ इट वाज अ इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर देन it will affect more. So n change does not changes significantly. Yeah, n does not changes significantly, but tau changes. Tau changes the significant one. Tau increases significantly. Sorry, decreases. Decreases significantly. So n does not changes significantly, but tau decreases significantly. Tau का वैल्यू क्या है? significantly कम हो जाता है, राइट? आ रहा है समझ में? सो टाउ का वैल्यू डिक्रीज होगा, हेंस रेजिस्टिविटी, therefore resistivity increases with increase in temperature. I hope मजा आया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत कम ही लोग सोच पाते हैं। अगर आपने सोच लिया तो मुझे अच्छा लगेगा कि यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो हो वो डिक्रीज हो, इंक्रीज हो गई। किसकी वजह से? इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टिविटी बढ़ा। ओके, हाँ सर। हाँ सर। और हमने इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी देखा था, वो भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, बट छोड़ो, अब वो बहुत ही ज्यादा बियॉन्ड हो जाएंगे हम टॉपिक से। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी वर्ड अपने को समझ में आ गया, हाँ सर। कैसे टेम्परेचर से रिलेटेड है वो सब हमने समझ लिया, राइट ना? नेक्स्ट इज छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, बुक रीड करोगे आप तो। सुपर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, ये जहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ। इंसुलेटर में क्या होता है?
इसी टॉपिक से रिलेटेड, रेजिस्टिविटी एंड आल्सो रिलेटेड. तो रेजिस्टिविटी इन केस ऑफ insulator, what happens? Resistivity is very large. Resistivity of insulator is very large. Why? N is very small. N का वैल्यू जो है बहुत कम होता है, राइट? और टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर मैं इस फॉर्मूले से जाऊं, रो इज m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, ठीक है? तो इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, पहले तो n का वैल्यू ज्यादा, सॉरी n का वैल्यू बहुत कम होता है फॉर इंसुलेटर. तो फॉर इंसुलेटर n इज वेरी स्मॉल, और इंसुलेटर n is very small, right? Hence rho is very large. Resistivity बहुत ज्यादा रहता है. I don't remember the values as compared to good conductors. Good conductors में 10⁻⁻8 के आसपास होता है. As compared to this, ये bad conductors में 10⁻11, 10⁻13 ऐसा होता है. तो you see how many times it is. million times more than this one. क्या good conductors का रिपीटेडली यूज करेंगे तो थोड़ा ये हीट फॉर्म होगा ना सर? हीट फॉर्म होगा ना, तो दिखाऊंगा ना. तो उससे बढ़ती है ना रेजिस्टिविटी? हाँ, बढ़ती है ना रेजिस्टिविटी. एक क्वेश्चन भी हमने किया था उसके ऊपर. कब सर? क्या बात कर रहा है? अरे वोल्टेज लगाया V, करंट चेंज हो गया I1 से I2 ड्यू टू हीटिंग, किया भी हमने. क्या बात कर रहे हैं? अल्फा निकाला था हमने. रिवाइज तू भी करना बंद कर दिया क्या? तुम क्या करते हो? हेलो, हाँ सर. याद आया कुछ? हाँ हाँ सर. तो रेजिस्टिविटी बहुत लार्ज होती है. दिस इज फॉर गुड कंडक्टर्स. और ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मतलब हर एक मटेरियल के ऊपर रहता है. मैं अंदाजा दे रहा हूँ आपको, राइट? एंड दिस इज फॉर इंसुलेटर. तो अगर हीटिंग किया आपने, तो इफ एन इंसुलेटर इज हीटेड, अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा? इफ एन इंसुलेटर इज हीटेड तो क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे. Number of free electrons per unit volume will increase, right? So number of n will increase significantly. भाई अभी इसमें 10 हैं, तो 10 अगर और बढ़ गए तो सीधा डबल ही हो गया ना. तो रेजिस्टिविटी में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, नहीं हो ना? अगर n का वैल्यू पहले से 10 है, 10 पर मीटर क्यूब, तो अगर 10 बढ़ गए तो 10 का 20 हो गया ना, तो नियरली डबल हो गया, तो रेजिस्टिविटी आधी हो जाएगी, राइट? बट वो इंसुलेटर कंडक्टर में इतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया था. तो इफ एन इंसुलेटर इज हीटेड एन विल इंक्रीज, hence resistivity decreases. Hence resistivity decreases. ठीक है. सो इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा विथ इंक्रीज इन व्हाट? Sorry, increase in temperature. Then next is semiconductors. Semiconductor is a thing whose conductivity lies between good conductor and insulator. ये एक अलग से पूरा चैप्टर भी है हमारे सिलेबस में. तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से बेटर होती है एंड किससे पुअर होती है? अपना गुड कंडक्टर से पुअर होता है. सॉरी, हाँ, गुड कंडक्टर से पुअर होती है. ये होता है सेमी कंडक्टर. तो इसके साथ भी कुछ ऐसी कहानी होती है. उसमें भी n का वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़े ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इंसुलेटर, बट इतने ज्यादा नहीं होते. तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे भी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कम होने लगती है. ठीक है. तो रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन
टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर्स आल्सो। ये एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट इज व्हाट, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है, या सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर और सुपर कंडक्टिविटी ये क्या होता है? सम ऑफ द मटेरियल्स आर, एक 2 मिनट रुकना मैं, 2 मिनट में बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो?